Good morning, everyone. So today I Astha on board from Mastro, the studio of English language. So today I am here with you all to discuss our next poem, The Road Not Taken by Robert Frost. So first of all, we'll discuss the intro and then the central idea, and after that I'll explain you the stanza with the explanation. And first of all, starting with the intro. This article deals with The Road Not Taken, written by Robert Frost and published in 1916. ना ये आर्टिकल जो है ये सारा इस पे डिस्कस किया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ के रियल लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, कैसे हमारे को सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। एंड द रोड नॉट टेकन दैट डिस्क्राइब्स द डिलेमा ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड विद डाइवर्जन। अब एक बंदा है, वो खड़ा है आगे, पोएट जैसे एक टू रोड्स के आगे खड़ा है ना, वो दोनों रोड्स को इकट्ठे क्रॉस कर सकता है। सिंगल रोड पे उसको ये डर है कि कोई गलत मैं डिसीजन ना ले लूँ जाते वक्त और वो रोड आगे जाके बंद हो, या ऐसे ही वो इस चीज़ को रियल लाइफ के साथ डिस्कस करता है कि हम कभी-कभार कोई डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जो हमारी लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में हमारे को बहुत ही टफ मतलब हमारी लाइफ सिचुएशन कर देता है। सो डिसीजंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान से अपने डिसीजंस लेने चाहिए, यही इस पूरी पोएम में बताया गया है। द डाइवर्जन सिंबलाइजेज रियल लाइफ सिचुएशन समटाइम्स इन लाइफ टू। कभी बार हमारे को इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हम सिचुएशन ले लेते हैं जो कि टफ हो जाते हैं हमारे लिए। We could not decide what is right or what is wrong for us. Now, coming on to the central idea. The central idea of the poem is it is composed by Robert Frost, and the poet is in a dilemma in making the decision of life. In a yellow wood, he is standing in front of two roads, and it is divergent in front of him. One of the roads was obviously left traveled, and it was less grassy. At the length, he chose the road that was less walked. वो कह रहे हैं कि एक तो रोड थी जब वो खड़ा है, मतलब फ्रंट पे खड़ा है एंट्रेंस पे। एक रोड जो है वो है लेस डाइवर्जेंट है, मतलब वो है लेस ट्रैवल्ड है, ग्रासी है बहुत ज्यादा। और जो वो चूज करता है वो है लेस वॉकड, मतलब लोगों ने उस पे वॉक नहीं किया हुआ, मतलब न्यू न्यू टाइप्स रोड ही है वो। Through this choice, the poet highlights that our choice decides our future. The choices that we make have a huge impact on our future. वो कह रहे हैं कि यही डिसीजंस जो हम लेते हैं, यही चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एक ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अगर हम रॉन्ग चॉइस ले लें तो हमारे को रिग्रेट भी करना पड़ सकता है और हम उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकते। सो वी मस्ट बी वाइज while मेकिंग चॉइस इन लाइफ। Coming on to the explanation, the first stanza says, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Explanation goes here. The poet came to the junction of two roads in the forest. The roads were branching away from each other. The poet was a single traveller, was sorry to realize that he could not go along the both, but at the same time, he stood at the junction of two roads from a long time. He looked along the roads as far as he could to spot where the road became hidden in the growth of trees and bushes. Now this stanza हमारे को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे दो रोड्स के सामने पोएट खड़ा है, सिंगल ट्रैवलर है, एंड ही सॉरी टू रियलाइज कि वो दोनों रोड्स को इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड ही स्टूड एट द जंक्शन, वो एंट्रेंस पे खड़ा है दोनों रोड्स की और लास्ट तक देख रहा है कि ये कहाँ तक रोड खत्म होता है, क्या ट्रीज के साथ जो रोड छुपी हुई है उसके पीछे क्या है। सो दिस वॉज द एंडिंग ऑफ द स्टैंजा 1. Coming on to the stanza 2, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far as that passing there he had warned them really about the same. Now the stanza tells us this one was just a good and comfortable road for journeying along the one another. In the way it was entitled as a preferential treatment. It was grass covered and therefore provided the travellers with an additional attraction. So far as use of either roads by travellers as to point was concerned, both had been frequently used by them and were worn and broken at the same extent. Now he says कि दोनों रोड्स ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी रोड जर्निंग के लिए। एंड कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब चाहिए था उसको, कौन सी वो प्रेफर करता है। इट वॉज ग्रीन ग्रास कवर्ड, ग्रास से कवर्ड थी, एंड देयरफॉर प्रोवाइडेड ट्रैवलर्स को वो एडिशनल अट्रैक्शन दे रही थी। सो फार द यूज ऑफ आइदर रोड वॉज ट्रैवलर्स अप टू द पॉइंट। वो कह रहा है कि दोनों ही ट्रैवलर्स के साथ मतलब यूज हुई थी, दोनों रोड्स ट्रैवलर्स ने यूज की हुई थी, दोनों ही वोन थी, दोनों ही ब्रोकन थी एट द सेम एक्सटेंट। सो ही वांट्स टू से कि दोनों रोड्स बहुत ही अच्छी थी, पर उसमें से दोनों रोड मतलब एक रोड ऐसी थी जो कि बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत ही अच्छी थी जर्निंग के लिए, एंड जिसके साथ वो मतलब अपनी जर्नी करना चाहता था।
Coming on to the stanza third. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another one, yet knowing how for the leads on to way it doubted I should ever come back. Now here the poet wants to say, reinforcing this statement, the speaker recalls that both roads were covered in the leaves, which had not yet turned black by the foot traffic. The speaker exclaims that he or she is a fact saving the first road and will travel it at later date, but immediately contradicts himself with the acknowledgement that in life one road tends to lead onward to another. So it's therefore unlikely that he will ever actually get a chance to return to first road. नाउ इन दिस पैरा ही वांट्स टू स्टेट दैट वो ये स्टेट कर रहा है कि वो कहता है कि दोनों रोड्स ही लीव्स के साथ कवर्ड हैं और दोनों मतलब अभी तक ब्लैक नहीं हुई हैं लोगों के पैरों के निशानों से। द स्पीकर एक सेम वो कह रहा है कि मतलब एक फैक्ट है जो कि वो सेव करना चाहता है कि पहली रोड वो लेटर ट्रैवल करेगा, मतलब आगे जाके एक रोड तो अभी ट्रैवल करेगा बट जो दूसरी रोड रह जाएगी वो कह रहा है कि मैं आगे जाके अपनी लाइफ में दोबारा उसको वापस आके वहीं से ही ट्रैवल करूंगा। बट इमीडिएटली वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको कोई चीज याद आती है। वो कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक ही रोड को बंदा एक बार ट्रैवल कर सकता है, उस पर दोबारा चांस उसको कभी नहीं मिलता रिटर्न करने का। जैसे कि हम इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे कि हम अगर एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो सेम डिसीजन हम अगले 4-5 सालों में या 5-6 सालों में कभी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। एक डिसीजन जो हम ले लेते हैं वो फॉर शॉर्ट डिसीजन होता है वन शॉट में, और उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करके आगे जाके लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। तो सेम वो यहाँ यही कहना चाहता है कि एक रोड को वो पहले कहता है कि मैं दोबारा 3-4 साल बाद दोबारा जब आऊंगा तब दोबारा ट्रैवल करूंगा, बट अगेन वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करके यही कहता है कि एक बार जो आपका चांस निकल गया देन यू कान ट्रैवल दैट रोड अगेन, मतलब फर्स्ट रोड यू कैनॉट ट्रैवल इट अगेन। सो कमिंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा, I shall be telling with this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. Now, here the speaker imagines him as in a distant future recounting with a sigh the story of making the choice of which road to take. Speaking as though looking back on his or her life from the future, the speaker states that he or she was faced with a choice between two roads and chose to take a road that was less traveled, and the consequences of the decision have been made all the difference in his life. अब वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जब सोचता हूँ, मैं उसी चीज को जब दोबारा उस रिकाउंटिंग को सोचता हूँ, साई को सोचता हूँ, तो वो कह रहा है कि मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि मैंने क्या रोड की चॉइस की थी। Speaking as though looking back on his life for on future, the speaker states that he or she was faced. वो कहता कि आगे जाके फ्यूचर पे जब मैं सोचूंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, तो कह रहा है कि मैं उस टाइम पे वापस उसी फ्लैशबैक में जाके ये सोचूंगा कि मेरे को उस टाइम पे चॉइस मिली थी टू रोड्स ट्रैवल करने की, जिसमें से मैंने जो चूज की थी वो थी लेस ट्रैवल्ड वाली, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके जो वो डिसीजन मैंने लिया था उसने ही सारा डिफरेंस मेरी लाइफ में मतलब मेक किया है। उसने ही अगर अच्छा है तो अच्छा डिफरेंस मेक किया, बुरा है तो बुरा किया। तो वो कह रहा है कि मैं उस टाइम पे फ्लैशबैक में जाके सोचूंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर पोएम। यू नो इट वाज वेरी इजी एंड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। एंड एक स्टैंजा के हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। नेम द पोएट। एज यू नो द पोएट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट सी इन फ्रंट ऑफ हिम? He saw that two roads diverged in front of him. What is the poet sorry about? He's sorry that he could not travel both the roads together. What is the symbolic meaning of two different paths in a wood? The one path is an ordinary people, the other is less traveled path is than extraordinary people. जो एक पाथ को वो कह रहे हैं कि जो एक पाथ था वो ऑर्डिनरी पीपल का है और जो लेस ट्रैवल्ड है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, जो आजकल इस मॉडर्न सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। So this was the end of our poem and hope you understood it. आपको समझ आई होगी explanation by explanation। आप इसको पढ़िए and hopefully maybe your exams goes good and till then happy learning.